So now let us try to do the derivation of the prism. This was the basic definition basically. Now in the prism, अब ये वाले prism में हम इसका front हिस्सा लेंगे, यानी आपके पास एक triangular cuboid है ये, ठीक है, triangular shaped है 3D figure. इसको front view में देखेंगे, यानी if you just look at the front of it, you will only see a triangle. That section, let me write, this is the front section of your prism. ठीक है, let us give some name. Here I had given ABC. Let me give it for the derivation as X, Y and Z. That is the front face. ठीक है. Then what else can we do? Let me move on to consider with the explanation we'll move forward. Consider a prism with principal section XYZ. Principal section यानी एक front section या फिर उस prism का एक कट लेकर उसका एक plane निकालेंगे तो आपको एक principal section मिलेगा. ठीक है. Let a ray PQ be incident at Q. Let us incident a ray PQ. ठीक है. This is P at where it is intersecting. Let us call it as Q. Let a ray PQ be incident at Q at an angle of incidence I. At an angle of incidence I. Before I mark the angle of incidence, let me mark normal. ठीक है. Normal ऐसा आएगा. इस पॉइंट के लिए नॉर्मल ऐसा 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे इस फेस के लिए. डोंट थिंक दैट आई एम ड्रॉइंग इट फ्रॉम सम पॉइंट. जस्ट सी हियर, नॉर्मल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम at 90 degree. This normal is at 90 degree to XY. Clear? Then this will be the angle of incidence. Clear? Then another thing, from rarer to denser. Obviously outside is air, inside it is some glass. So it will be, here the refractive index is more, here it is less, density is more, density is less, optical density when I say that. Yeah. So rarer to denser bends towards the normal. Yeah. So here let me draw that. It will go something like this. Clear? That's how it is. तो यानी second normal जो है कुछ ऐसा आना चाहिए, ये वाला नहीं. ठीक है. This is your right. This is your proper line. This is not right. ठीक है. This is your line. Clear? So again, don't draw in the classwork. This line also can come. Please understand. Now ON is the normal. So let a ray PQ be incident at Q at an angle of incidence I. Let ON be the normal at Q. ON is the normal at Q that has been drawn to the refractive surface XY. ठीक है, XY और ABC whatever it is. Next, क्योंकि अलग अलग टेक्स्ट बुक में आपका नेमिंग अलग है. The ray undergoes refraction. The ray undergoes refraction here. Yes. And how much refraction? Rarer to denser ऐसा आ गया. Normal से अब आप refracting angle लिखोगे R1. Clear? Undergoes refraction angle R1, and this refracted ray is incident on face XZ. Yeah, or it is incident on face AC if I write it as ABC. ठीक है. So incident at what angle? फिर इस normal से इस normal को कैसे draw किया है? 90 degree to XZ plane. So from that, angle of incidence is this one, and that angle of incidence I can call it as R2. ठीक है. Let me call it R2. The ray gets refracted at XZ again. Yeah. And let the angle of emergence, यानी बाहर जब निकलेगा तो कैसे निकलेगा? Now it is denser to rarer, bends away from the normal, so it goes something like this. Yes. So this is your angle of emergence. It is the angle of emergence. Now you will tell why R2 and E has been written. Why not I2 R2? ठीक है. We can also take it as I2 and R2 also. But relation में आगे चलकर बहुत सारी चीजें कॉमन होने वाली हैं. ठीक है. So I hope this much is clear. क्या किया हम लोगों ने? We have taken the prism. ठीक है. In that prism, let us say the principal section is given as X, Y, Z. Then at some angle you have a ray being incident at Q. When you put at this, यहाँ पर 90 डिग्री पे, अच्छा डॉटेड डालना था. ठीक है. 90 डिग्री पे ये वाली एंगल आएगी. ठीक है. देन ON या O बाद में मार्क करेंगे. तो यहाँ के बाद रिफ्रैक्शन होके ऐसे जाएगी रे. अच्छा, आप बोल सकते हो कि सर वाई इज इट गोइंग पैरेलल टू द बेस. वो आगे आपको समझ में आएगा. वी आर इंसिडेंटिंग द लाइट इन सच, हम लाइट ही ऐसे डाल रहे हैं कि
रे रिफ्रैक्ट ऐसे हो कि वो बेस को पैरेलल हो जाए, ठीक है। वो किस लिए कर रहे हैं आगे आपको पता चलेगा इन द डेरिवेशन। सो वंस इट गोज दिस वे, देन अगेन एट दिस पॉइंट, या दिस पॉइंट पी क्यू, एंड देन आई हैव मेंशन्ड दिस एज आर एंड दिस एज एस। सो यहाँ पर आर पे लगेगा, आर से फिर वो यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। दिस विल बी योर नॉर्मल, ठीक है। सो दिस इज एन डैश, ओ एन डैश, ठीक है, ओ एन डैश, डन। एंड देन इट गोज समथिंग लाइक दिस। सो यहाँ पर जिस एंगल पे इंसिडेंट हुई, और ये आपका एमरजेंस एंगल्स होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज हियर, R1 लिखा है। सेकेंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसको हम इंसिडेंस की जगह पर R2 दे रहे हैं नाम, आगे आपको पता चलेगा क्यों R2 दिया है, ठीक है। दिस इज योर बेसिक डायग्राम that is required, and here you have something called as angle of prism। angle of prism जो यहाँ बताया था, अब आपको समझ में आ रहा होगा, फ्रंट फेस लिया गया है, उसी चीज़ को रिड्रॉ किया गया है। आप लोग क्लियर कट, यू जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस फिगर, देन वी कैन मूव forward, because I'll be turning the page and again turning back and showing will be a problem. So just make a note, pause the video, make a note of the figure properly, and then continue. Clear? Next let us apply Snell's law. Apply Snell's law for, apply Snell's law, where can we apply this? दो जगह अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ऑन फेस एक्स वाई फेस पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। एक्स वाई फेस पे अप्लाई करेंगे तो if I have to write it this way, then just look at the figure there. This figure is really important ना, काम करते हैं, यहीं पर रख लेते हैं, ठीक है। Done. I hope now it is visible. See, at XY place I am applying, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपके लिए, NA है, अंदर NG है, ठीक है। Can I write NA sin I is equal to NG sin R1? NA sin I is equal to NG sin R1. Refractive index of outer medium times the sine of the angle of incident angle in that medium is equal to refractive index of second medium times multiplied by the sine of the angle in that particular medium. So इस फेस पे डाल रहे हैं तो I and R1 लिखेंगे, ठीक है। So NA sin I is equal to NG sin R1, ठीक है। देन इसको रीअरेंज करेंगे, sin I by sin R1 will be equal to, sin R1 इधर ले लिया, sin I इसे ही रखा है, NG by NA, ठीक है। सिमिलरली अप्लाई Snell's law to second phase, that is XZ, second phase. So here what will you get, focusing properly, yeah, here what will you get is, when you apply for the second phase, again you will get NG sin R2 is equal to NA sin E, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम, इस फेस के लिए यही फर्स्ट मीडियम है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम मल्टीप्लाइड बाय द साइन ऑफ द एंगल इन दैट मीडियम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम NA मल्टीप्लाइड बाय द साइन ऑफ द एंगल इन दैट मीडियम, बाहर NA है, ठीक है। तो दिस हाउ यू गेट इट। देन इन दिस sin R2 by sin E is equal to, sin R2 by sin E is equal to NA by NG, ठीक है। इसको अगर मैं उल्टा लिखूं, आई कैन राइट sin E by sin R2 is equal to NG by NA, रिवर्स कर दिया इसको, ठीक है। अब इसको और इसको देखो, ठीक है। NG by NA, दोनों साइड राइट हैंड साइड कॉमन है, यू कैन नेम इट इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 and 2 you can write, or you can also tell, but NGA is equal to 1 by NAG, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, तो ये रहा, नाउ इट इज फोकसिंग आई गेस। NGA is equal to 1 by NAG लिख सकते हैं, या फिर आप फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 भी लिख सकते हैं,
इफ यू मेंशन दिस एज इक्वेशन 2 एंड दिस एज इक्वेशन 1, दोनों सही है, ठीक है, या तो ये लिखें या तो ये लिखें, ठीक है, ये बेटर है क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रेस्पेक्ट टू अदर n21 इज इक्वल टू 1/n12, वो आपने सीखा था, ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. डन. लेट मी जस्ट, हाँ, now it is visible. Clear? So equating the right hand side, what will you get? Sin I by sin R1, sin I by sin R1 is equal to sin E by sin R2. Sin I by sin R1 equals sin E by sin R2 मिलेगा आपको. Therefore, can I say, since everything is in sin, can I say I is equal to E and R1 is equal to R2? This is an important conclusion. ठीक है. Angle of incidence is equal to angle of emergence and angle of refraction at the first surface is equal to angle of refraction at the second surface. यानी I और E सेम हो गए, R1 और R2 सेम हो गए, ठीक है. तो ये आपने प्रूव कर लिया. तो now I hope it is clear what we try to do. Let me just move on to the next part of this thing. ठीक है. Yeah, now visible. So I is equal to E and R1 is equal to R2 has been proved. So therefore we come to a conclusion. In the position of minimum deviation, in the position of minimum deviation capital D, ठीक है, prism lies symmetrically with respect to incident ray and emergent ray, ठीक है. that is I is equal to E. वही बोल रहा है. क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? ठीक है, मैंने शुरू में बताया था ऐसे एंगल पे हम ऐसे एंगल पे लाइट को इंसिडेंट करेंगे ताकि ये वाली जो रिफ्रैक्टेड रे है ये पैरेलल हो जाए बेस से, ठीक है. उस तरीके से हमने किया और उसके बाद ये बेसिकली थियोरेटिकली प्रूव किया है कि I is equal to E and R1 is equal to R2. जस्ट लुक एट दिस. इन द पोजिशन ऑफ मिनिमम डिविएशन, एक ऐसी पोजिशन में जहाँ पर डिविएशन मिनिमम हो जाए, प्रिज्म लाइज सिमेट्रिकली विद रेस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे एंड एमरजेंट रे, यानी इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे सेम एंगल्स बनाएंगे नॉर्मल के साथ. तो उसका मतलब I इक्वल्स E का मतलब ये हुआ कि ये वाली जो बीच की लाइन है Q to R, QR is parallel to YZ. That is what we have learnt until now. I hope it is clear. This is one part of your derivation. In your legends he has skipped this particular part, which was one of the most important. That's why I tell you legends is only to pass the subject. If you want to actually learn it in the right way, then you will have to refer Dinesh publication or Bosco. Done. Next, so another way of writing this is, I'll just read it out. If the angles of the base are equal, base angles अगर equal हो जाएं, let me keep this here. base angles अगर equal हो जाए, if the angle of the base are equal, refracted ray passes parallel to the base of the prism. That is when provided the prism is in minimum deviation position. Clear? So that is the same way, another way of writing the same particular step. Next, let us move on to the next part of the concept. That is, now look at the figure again. Okay, I hope it is visible. Yeah, from the figure, the next step is, from the figure deviation d1 equals, deviation d1 माने कौन सी बात कर रहे हैं हम लोग? Let me tell you where the deviation comes from. ठीक है, I'll have to draw it in the figure itself.
यहाँ पर वो उस रेफरेंस में रखते हैं, ये चीज़ को देखें हम, ये आपकी इंसिडेंट रे थी, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे थी, कितना डिविएट हुई इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सटेंड करेंगे तो ये हो गया, ये जो एंगल है इट इज़ कॉल्ड D1, ठीक है, डन। सो दैट इज़ योर D1। व्हाट अबाउट D2? ऐसा जाके फिर ऐसे बेंड हो गई, इसको उल्टा एक्सटेंड करना पड़ेगा, दिस विल बी योर D2, ठीक है। तो ये जो इस तरीके से गई है रे, ठीक है, और इस तरीके से है वो, ये पहले रे को एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पर आपको D1 मिलेगा, ठीक है। आई एम कलरिंग इट आउट फॉर यू, डन। एंड इस रे का बेंडिंग चेक करना है, यहाँ से इतना कितना बेंड हुई, तो या तो आप लोग इसको एक्सटेंड करके चेक कर सकते हो, या फिर इसको उल्टा एक्सटेंड करके बोल सकते हो कि दिस इज D2, ठीक है। दिस शेडेड पोर्शन इज D1, दिस इज D2। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो उसी चीज़ को फिर से हमें यहाँ पर लिख देंगे हमारे मेन फिगर में, एक्सटेंडेड बोथ ऑफ देम, दिस इज योर D1, दिस इज योर D2। होप इट इज विजिबल, ठीक है। वेट अ मिनट, D1 एंड D2 R1 और R2 के ऊपर है। इफ यू आर स्टिल नॉट एबल टू सी इट, रेफर द टेक्स्ट बुक वंस, वहाँ पर आपको क्लियर कट दिखाई देगा, ठीक है। D1 अब क्या होगा, D1 जो है, कैन आई राइट इट एज I1 माइनस R1, D1 कैन बी रिटन एज I1 माइनस R1, यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल था ना, यहाँ पर आपका I था, यहाँ पर आपका E था, और यहाँ पर नीचे की तरफ आपका R1 था, तो I माइनस R1 इज D1, ठीक है। I माइनस R1 इज D1, एंड हियर D2 के लिए E माइनस R2 नीचे है, ठीक है। दैट विल गिव यू द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जस्ट लुक एट योर फिगर, यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली, ठीक है। D1 इक्वल्स ये छोटी एंगल इक्वल्स I माइनस R1, D2 इक्वल्स R2 एंड E वाला डिफरेंस, E माइनस R2, ठीक है। एंड D2 वी कैन रिटन एज E माइनस R2, क्लियर? होप इट इज क्लियर। नाउ टोटल डिविएशन, यानी टोटली कितना डिविएट हुआ, टोटल डिविएशन इज, लेट अस कॉल इट एज स्मॉल d इज इक्वल टू D1 प्लस D2, ऑब्वियसली टोटल उतना बेंडिंग हुआ है, तो d इज इक्वल टू I1, अच्छा I1 नहीं था, I ही था, उसको I लिखे थे नाम, ठीक है। I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, सो I प्लस E माइनस ऑफ R1 प्लस R2, I प्लस E माइनस ऑफ R1 प्लस R2, दैट इज योर D। I प्लस E माइनस ऑफ R1 प्लस R2, ये हो गया आपका एक और इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 जो तभी आपने प्रूव किया I इक्वल्स E एंड R1 इक्वल्स R2, ये वाला, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। आई होप टिल हियर इट इज क्लियर, डन। नेक्स्ट थोड़ा लंबा डेरिवेशन है, पूरा ज्योमेट्री पे बेस्ड है। फ्रॉम क्वाड्रिलैटरल XQOR, फ्रॉम क्वाड्रिलैटरल XQOR, ठीक है, कुछ ऐसे फॉर्म हो रहा है वो, X Q इधर है, O इधर है, R इधर है, ठीक है। तो क्वाड्रिलैटरल XQOR में आपको आराम से लिख सकते हो एंगल A प्लस एंगल XQO, ठीक है, प्लस एंगल QOR प्लस एंगल ORX इज इक्वल टू 360। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 360, ठीक है। उसके लिए एक एंगल है, एंगल A जो ऊपर है, ठीक है। फिर एंगल A के बाद 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर 90 है ना, XQO इज 90, नॉर्मल ड्रॉ किया है इसको, ये 90 है तो यहाँ पर भी 90 है, ठीक है, 90 प्लस ये वाली एंगल पता नहीं, QOR लिखेंगे, QOR प्लस फिर 90, क्योंकि यहाँ पर ये 90 है, XRO ये पूरा 90 है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल ड्रॉ किया था ना उसको पहले। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, ठीक है। ये A है, ये और ये 90 है, ठीक है, और ये वाला एज इट इज QOR,
उतना लिख लिया हमने। अब इसमें से क्यू ओ आर अलग करो, क्यू ओ आर विल बी इक्वल टू वॉट 360 एज इट इज, 90 उधर कर लेंगे, -90 ए को भी इधर डाल लेंगे -a, ठीक है। सो यू विल गेट 360 -90 इज 180 -a इज इक्वल टू क्यू ओ आर, ठीक है। ये आपका हो गया क्यू ओ आर का एक फॉर्मूला। डन। नेक्स्ट, done. From triangle QOR, let me first write down, then I'll show it to you. R1 plus R2 plus QOR is equal to 180. From triangle QOR, ठीक है। ये जो रोम्बस पहले डाल दिया ना, उसमें इतना निकालेंगे, ये वाला, ये Q है, ये O है, ये R है, ठीक है। ट्रायंगल क्यू ओ आर, R1 प्लस R2, यहाँ R1 था, यहाँ R2 था, R1 प्लस R2 प्लस क्यू ओ आर इज इक्वल टू 180, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180। ये आपने सीखा है पहले से भी, तो उसी चीज़ को लिख रहे हैं अभी, ठीक है। तो सॉरी फॉर रोटेटिंग पेज सो मच, या R1 प्लस R2 प्लस क्यू ओ आर इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब क्यू ओ आर हमने पिछला इक्वेशन पहचाना था, जस्ट लुक एट 2 स्टेप्स, क्वाड्रिलैटरल में हमने पहचाना था। क्यू ओ आर वॉज रिटन एज 180 माइनस ए, उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस क्यू ओ आर इज 180 माइनस ए इज इक्वल टू 180, ठीक है। 180 कैंसिल, ए उधर को जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए बन गया, ठीक है। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए हो गया। डन। तो ये हो गया एक और चीज़। अब 2 और 3 को कंपेयर करेंगे, 2 और 3 को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू R1 प्लस R2 मिल गया। 2 इक्वेशन क्या था, I प्लस ई माइनस ऑफ R1 प्लस R2 इज इक्वल टू डी, ये वाला d इज इक्वल टू I प्लस ई माइनस ऑफ R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 को अब रिप्लेस करके हम a लिख सकते हैं, तो इक्वेशन 2 में R1 प्लस R2 की जगह पर a लिखेंगे, तो इक्वेशन 2 नाउ बिकम्स d इज इक्वल टू I plus E minus A, I plus E minus A, this is your equation number 4, ठीक है। so this till here it is clear, ठीक है। क्या क्या किया हमने, थोड़ा अगर कंफ्यूज हो रहा है तो एक बार। डन। हाँ, सबसे पहले देखो फिगर ड्रॉ कर लिया, उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस R1 R2 E, ठीक है, और डिविएशन का बाद में आगे आएगा, ठीक है। उसके बाद पहले स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, साइन आई बाई R1 इज इक्वल साइन R1 इक्वल्स एन जी बाई एन ए। फिर स्नेल्स लॉ सेकंड फेज को अप्लाई किया, साइन R2 बाई साइन ई इज इक्वल टू एन ए बाई एन जी। दोनों को इक्वेट किया, आपको मिला ई इक्वल्स आई एंड R1 इक्वल्स R2। ये हो गया पहला डेरिवेशन, पहला हिस्सा डेरिवेशन का। डन। उससे हमें मालूम हुआ इन द पोजिशन ऑफ मिनिमम डिविएशन, यानी प्रिज्म को मिनिमम डिविएशन में यूज करेंगे तो रिफ्रैक्टेड लाइन, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे will always be parallel to the baseline, वही सीखा। नेक्स्ट, डिविएशन D1 इक्वल्स I माइनस R1, डिविएशन D2 इक्वल्स E माइनस R2, वो इधर है। I माइनस R1 इज D1, E माइनस R2 इक्वल्स D2। आई होप I माइनस R1 इक्वल्स D1, E माइनस R2 इक्वल्स D2, ठीक है, तो वो लिख लिया। उसके बाद टोटल डिविएशन D इक्वल्स D1 प्लस D2, क्लियर। उसके बाद उसको सब्स्टिट्यूट किया, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, I प्लस ई माइनस ऑफ R1 प्लस R2 निकाला, इसको एक इक्वेशन बना के रख लिया। फिर क्वाड्रिलैटरल निकाला, यहाँ पर ऊपर क्या था, x था, x क्यू ओ आर क्वाड्रिलैटरल निकाल के उसमें से एंगल्स लिखे, a प्लस 90 प्लस क्यू ओ आर प्लस 90 इक्वल्स 360। उसको रीअरेंज किया, क्यू ओ आर मिला 180 माइनस a, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल क्यू आर लेकर सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 यूज किया, R1 प्लस R2 इक्वल्स ए मिला, उसको पुराने वाली इक्वेशन में डाल दिया तो D इक्वल्स I प्लस ई माइनस ए मिला। सो टिल हियर वी हैव फाउंड आउट, ठीक है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके लेजेंड्स में नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर अच्छी तरह से नोट कर लें। जिस तरीके से यहाँ पर मैंने डेरिवेशन किया है उसी तरीके से आपके फाइनल एग्जाम में होना चाहिए, कोई भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। लेजेंड्स में शुरू का हिस्सा I इक्वल्स ई एंड R1 इक्वल्स R2 प्रूव नहीं किया है उसने, तो
तो शायद मार्क्स कट कर सकते हैं अगर आप वो यूज़ करें, तो इसलिए फॉलो दिस पर्टिकुलर डेरिवेशन इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। सो अब एक और चीज़, अब यहाँ से अब तक यहाँ पर थियोरी से प्रूव किया है, ठीक है। अब इसके बाद वी आर गोइंग टू स्टेट अ फ्यू थिंग्स दैट हैव कम फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। तो उसको मैं आपको प्रूव तो नहीं कर सकता, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट को समझा सकता हूँ कि उसका आउटकम क्या है। एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, तो लेट मी राइट डाउन फर्स्ट। एंगल ऑफ डिविएशन यानी डी, एंगल ऑफ डिविएशन डिपेंड्स अपॉन, आप लिख लो, एंगल ऑफ डिविएशन डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंगल ऑफ डिविएशन डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस एज शोन इन फिगर। ये आपकी लाइन है, शोन इन फिगर। एंगल ऑफ डिविएशन डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस एज शोन इन फिगर। फिगर क्या है? ये आपका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है जो आपको प्रूव नहीं किया गया है, बस आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये एंगल ऑफ डिविएशन वाई एक्सिस में रखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्स एक्सिस में रखा है, ठीक है। कौन से है ये? ट्रायंगल का शुरू का एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अभी यहाँ पर ट्रायंगल दिख रहा है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुरू का और डिविएशन टोटल उसका डिपेंडेंस। बताना ये चाह रहा है कि वो जितना इंसिडेंट एंगल चेंज करोगे वैसे ही डिविएशन चेंज होगा। वो कैसे बिहेवियर करेगा इस प्रिज्म के काम पे, वो एक्सपेरिमेंटली प्रूवन चीज बताई गई है। हाउ इज दैट? इट द फिगर इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यानी जैसे जैसे डिविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे डिविएशन पहले तो कम होगा एट वन पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एट दिस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे डिविएशन सबसे मिनिमम आ रहा है, सो डी एम लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। एट मिनिमम डिविएशन शुरू के हिस्से में हमने ऑलरेडी प्रूव किया आई इक्वल्स ई एंड R1 इक्वल्स R2। यानी जो हमने आई इक्वल्स ई और R1 इक्वल्स R2 प्रूव किया ना, वो इस पॉइंट पे वो ट्रू है, ठीक है। इसका मतलब ये ग्राफ जिसको समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट फोकस, जो प्रिज्म हमने रखा था ना उसको अलग अलग एंगल्स पे इंसिडेंट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी। तो एट अ डिफरेंट वेरिएशन यू कैन पुट दैट एंगल। बट जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है, जैसे हम यहाँ जा रहे हैं 0 1 2 3, जैसे जैसे इंसिडेंस बढ़ रहा है डिविएशन कम होता जा रहा है। एट वन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई इंसिडेंस देयर इज डिविएशन विच इज मिनिमम। यही केस को हमने शुरू में प्रूव किया, आई इक्वल्स ई R1 इक्वल्स R2। उसके बाद और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो डिविएशन बढ़ता जाएगा। तो ये आपका प्रिज्म का एक बिहेवियर है जो एक्सपेरिमेंटली प्रिज्म को रख के अलग अलग एंगल्स पे फाइंड आउट किया गया कि डिविएशन क्या है। उस डिविएशन को नोट करके ट्रायल्स करके बार बार इस ग्राफ के नतीजे को पहुंचे। ये ग्राफ आपके सिलेबस में नहीं है, सॉरी नॉट सिलेबस में, ये आपके एक्सप्लेनेशन यानी इसका डेरिवेशन या इसका प्रूफ आपके पास नहीं है, आपको बस ये ग्राफ को याद रखना है, ठीक है। अब इसमें क्या है आपका एक्सप्लेनेशन, वही चीज को फिर लिख देता हूं ताकि आपको भी समझ में आ जाए। एज आई इंक्रीजेस d decreases till until as I increases, as angle of incidence increases, deviation decreases until d becomes minimum, ठीक है। आप एक काम करें, नोट कर लें, डिक्टेट करता हूं ये लाइन। As angle of incidence increases, deviation decreases until deviation becomes minimum. This minimum value of deviation is called angle of minimum deviation. This minimum value of deviation is called angle of minimum deviation and denoted by dm, ठीक है। Further if we increase angle of incidence, angle of deviation also increases. यानी यहां से यहां तक डिविएशन डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट के बाद आई एंड डी बोथ इंक्रीज, वही बताया जा रहा है, ठीक है। आपको अब भी समझ में नहीं आता, इस पॉइंट पे मार्क करके चेक करो कहाँ है डी, यहाँ पर है। उसके बाद थोड़ा चेक करो यहाँ पर है, तो यानी यहाँ से यहाँ I1 से I2 को जब चेंज हुआ डी जो है कम हो गया, और थोड़ा आगे जाओगे डी और कम होगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे डी कम होगा, कब तक? वेयर आई इज एट एन एंगल, आई इज इक्वल टू ई के वैल्यू तक डिविएशन मिनिमम होगा। ये एक ही पॉइंट हमें सीखना है यहाँ पे। देयरफॉर अब इतना लिखने के बाद अब यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर
at minimum deviation, at minimum deviation, ठीक है, यानी at minimum deviation मतलब when d is equal to dm, small dm या capital dm, ठीक है, when d is equal to dm, जब d deviation will become equal to minimum value of deviation, तब क्या हो रहा है, I is equal to e, ठीक है, and also r1 is equal to r2, ये हमने सीखा था। तो अब आपका इक्वेशन ये दोनों 3 और 4 इक्वेशंस क्या हो जाएंगे, 3 इक्वेशन था r1 प्लस r2 इज इक्वल टू a, अब ये क्या बन जाएगा, r1 r2 सेम है तो a इज इक्वल टू 2r हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2r, ठीक है। एंड इक्वेशन 4 d इज इक्वल टू i प्लस ई माइनस ए था, i प्लस ई दोनों सेम है तो 2i माइनस ए हो जाएगा, 2i माइनस ए, ठीक है। तो इसमें से अगर हम i सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, a प्लस dm बाई 2। अब ये इसको d को मैं d नहीं लिखूंगा, डिविएशन dm हो चुका है तो ये dm हो गया, जब d dm हो गया तभी जाकर ये इक्वेशंस चेक कर रहे हैं। तो एक हमें मिला a इक्वल्स 2r, दूसरा मिला i इक्वल्स a प्लस डी एम बाई 2, ठीक है। तो a इक्वल्स 2r से एक और चीज़ मालूम हुई, r इज इक्वल टू a बाई 2, ठीक है, r इज इक्वल टू a बाई 2। अब क्या कुछ समझ में आ रहा होगा आपको, r एंड i मिल गया, ठीक है, r एंड i मिल गया तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ सेज n इक्वल्स साइन i बाई साइन r, ठीक है, n इक्वल्स साइन i बाई साइन r, तो उसके हिसाब से n इक्वल्स साइन i की जगह पर मैं लिख सकता हूँ a प्लस डी एम बाई 2 बाई साइन r इज साइन a बाई 2, ये हो गया आपका डेरिवेशन। तो फाइनली आपका प्रूफ ये हुआ, जगह बाकी है नहीं फाइनल इक्वेशन लिखने के लिए, यहीं पर लिख लेते हैं, n इज इक्वल टू साइन a प्लस डी बाई 2 divided by sin a by 2. This is your final value that you could prove in this particular derivation, ठीक है। तो I hope it has been clear। एक बार फिर से अगर समझाना चाहूँ तो I can do it, just look at it, क्या क्या स्टेप्स हमने किए हैं। पहले फिगर ड्रॉ किया, I R1 R2 E मार्क कर लिया, एक्सटेंड करके उनको D1 D2 लिख लिया, ठीक है, नॉर्मल डाल के ओ लिख लिया, डन। उसके बाद स्नेल्स लॉ फर्स्ट पेज पे, स्नेल्स लॉ, अगर आपको ये डेरिवेशन लंबा दिख रहा है ना, स्टेप्स याद रख लो बस। पहला स्टेप क्या था, अप्लाई स्नेल्स लॉ फॉर 2 फेसेस, कौन से थे वो 2 फेसेस, अप्लाई स्नेल्स लॉ फॉर, वेट अ मिनट, वेयर हैव आई रिटन, too much is written so it is not visible, anyhow अप्लाई स्नेल्स लॉ फॉर, पहला स्टेप क्या था, स्नेल्स लॉ फॉर एक्स वाई इंटरफेस, देन अप्लाई स्नेल्स लॉ फॉर एक्स जेड सरफेस, 2 सरफेसेस को लिख लिया इक्वेट करके, i इक्वल्स ई r1 इक्वल्स r2 प्रूव कर लो। ये पार्ट आपके लेजेंड्स में नहीं है लेकिन करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप d1 d2 पहचानो फिगर से, d1 d2 पहचानने के बाद टोटल डी पहचानो, टोटल डी पहचान के रख लो साइड में। उसके बाद क्वाड्रिलैटरल ट्रायंगल का काम है, क्वाड्रिलैटरल निकालो, क्वाड्रिलैटरल से एंगल्स मेजर, एंगल्स मेंशन करके उसमें से अननोन एंगल निकाल के लिख के रख लो, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रायंगल को आ जाओ, ट्रायंगल में से सम ऑफ एंगल्स इक्वल्स 180 लिख लो। उसके बाद उसमें से अननोन एंगल को सब्स्टिट्यूट करके ए और आर का रिलेशन पहचान लो, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गया। फिर इसको पुराने वाले इक्वेशन में डाल के डी इक्वल्स आई प्लस ई माइनस ए मिल गया। तो यहां तक हम आ गए, ठीक है। अब उसके बाद एंगल ऑफ डिविएशन डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, हाउ एज पर दिस पर्टिकुलर ग्राफ, ठीक है, वेयर डिपेंडेंट वेरिएबल इज डी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज आई। अब उसके बाद जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे डिविएशन कम होगा। एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस deviation is minimum, this minimum deviation is called angle of minimum deviation। और इस पॉइंट पे I और E इक्वल हो जाएंगे। इसी चीज को हमने शुरू में प्रूव किया था, ठीक है। अब उसी को लिख लिया। उसके बाद जब D DM हो जाएगा तो I E होगा, I इक्वल्स E हो गया तो R1 इक्वल्स R2 हो जाएगा। अब इन चीजों को यूज करके वापस 3 और 4 में सब्स्टिट्यूट करो, A और दोनों इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करके I और R पहचानो। I और R मिलने के बाद स्नेल्स लॉ इक्वल्स N इक्वल्स साइन A बाई साइन R,
उसको सब्स्टिट्यूट करो, आपको आंसर मिल जाएगा. दिस इज लेंथी डेरिवेशन बट ऑल टाइम आस्क्ड इन योर PUC एग्जाम. तो या तो इसका डेरिवेशन पूछते हैं, नहीं तो इसका सिंपल सा एक प्रॉब्लम पूछते हैं. वो क्या प्रॉब्लम होता है, दे विल गिव यू A, ठीक है. अब आपका फाइनल फॉर्मूला किधर है, आपका फाइनल फॉर्मूला है ना. इसमें क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, A दे देंगे, D पहचानने के लिए बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देंगे, सब्स्टिट्यूट करके D पहचानना पड़ेगा. बस साइन इनवर्स करके, साइन टेबल यूज करके, आपका लॉगरिथमिक क्लॉक्स टेबल है ना, उसको यूज करके पहचानना पड़ेगा. दूसरा टाइप, D दे देंगे, A पहचानने को बोलेंगे, वो एक हो गया. नेक्स्ट और भी सिंपल टाइप, A और D दे देंगे, N पहचानने को बोलेंगे. थोड़ा ट्विस्ट क्वेश्चन में A और D देने के बजाय I और R के वैल्यूज देंगे. I और R जब देंगे तो A और D तो मालूम हो जाएगा, ठीक है. तो उसके बाद ये कहाँ से मालूम होगा, A प्लस डी बाई टू किसकी वैल्यू, किसकी जगह लिया है, I की जगह. तो I इक्वल्स A प्लस डी बाई टू यूज करके पहचान लोगे. R की जगह A बाई टू है, तो उसको सब्स्टिट्यूट करके A पहचान लोगे. वापस सब्स्टिट्यूट करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दिस इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन. इफ द प्रिज्म इज डिप्ड इन हनी, इफ द प्रिज्म इज डिप्ड इन वाटर, तब क्या होगा, इसको उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो देगा उससे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है. सो दिस इज योर डेरिवेशन. आई होप इट इज क्लियर. वी विल स्टॉप एट दिस. और इसके बाद अभी आखिरी जो टॉपिक बचा है, द टॉपिक इज अबाउट माइक्रोस्कोप्स. मुझे यूं लग रहा है कि वो माइक्रोस्कोप्स का जो है हमेशा बस रे डायग्राम पूछता है, और वो रे डायग्राम आज नहीं तो कल हम लोग रेगुलर क्लास को आ ही जाएंगे इंशाल्लाह. व्हेन वी कम टू द रेगुलर क्लास, माइक्रोस्कोप्स के जो लेंसेज हैं उसको ड्रॉ करके मैं बता दूंगा कि सिर्फ ड्रॉ कैसे करना है और उसका मैग्निफिकेशन फार्मूला क्या है. वो दो चीज़ें पूछी जाती हैं यूजुअली, और वो सिलेबस का लीस्ट पार्ट है. तो वी विल स्टॉप हियर विथ रे ऑप्टिक्स, अ लेंथी चैप्टर बट वन ऑफ दोस मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 चैप्टर्स जिसके जरिए से आप पास हो सकते हैं. याद रखिएगा, इन योर फिजिक्स यू हैव अराउंड 10 to 12 chapters you have, out of which if you study only 5 you can score somewhere around 55 above out of 70, ठीक है. तो 55 या 60 स्कोर कर सकते हैं. उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका रे ऑप्टिक्स है. अब हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट इंशाल्लाह आई ट्राई टू सॉल्व अ फ्यू प्रॉब्लम्स, डन, एंड देन वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर. एक और चीज़ जो मुझे बताना था, पेरेंट्स मीटिंग, मेनी पीपल डिड नॉट कम, ठीक है. आई रिक्वेस्ट यू, each one of you come with your books, come to the college, we are available in college, you can cross check, you can come, you can clear doubts. We also need to know what you have been doing, have you been studying or not, जायजा लेना है आपका. तो better you come and meet at once every week, at least once in a while. If you come and meet, you will be in progress with the education, or else you will lose yourself if you sit alone, ठीक है. और दूसरी चीज़ बार बार मैंने बताया है, जो G2 की बैच है या फिर उसके अलावा भी दो बाकी बैच में भी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जिनको सिलेबस जल्दी समझ में आता है, उन लोगों के लिए आई हैड टोल्ड प्रदीप क्षेत्रपाल दैट पर्टिकुलर टीचर्स वीडियोज़, अ होल फर्स्ट PU सेकेंड PUC इज़ अवेलेबल इन योर यूट्यूब. जस्ट वॉच दैम as much as possible. Try to finish the syllabus. Do not depend completely upon what we are doing here. Inshallah, we are trying to build the pace from now. So alternatives will be done, but classes will be held also in future. After 1 or 2 classes you will be getting live classes, no more YouTube classes in future. So बी रेडी विथ योर लाइव के लिए जो प्रिपरेशन करना है, मोबाइल हो या फिर रिचार्ज हो, सब कुछ करके रखें. ऑन टाइम होना पड़ेगा. लाइव में क्लासेस होंगी, उसके रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो जिस टाइम पे जो क्लास होगी उस टाइम को क्लियरली अटेंड करें. मिस करोगे तो यू विल बी द लूजर. क्लियर? बट एंड ऑफ द डे यू कैन ऑलवेज कम टू द कॉलेज, क्लियर योर डाउट्स एंड क्वेश्चंस ऑन वॉट एवर इट इज, एंड दैट इज इट. ऑल द बेस्ट.